डिसेबिलिटी इज नॉट कि हाँ मैं चल नहीं सकती या चल नहीं पाता तो मैं बेचारा या बेचारी हो गई. नो, दैट बेचारा बेचारी इज ऑल इन योर माइंड. लोग कहते रहते हैं यू शुड लव योर सेल्फ, यू शुड लव योर सेल्फ, राइट? लेकिन किसी को पता नहीं कि वो एक्चुअली कैसे करते हैं. हाउ डू यू ट्रूली एक्सेप्ट योर सेल्फ, योर फ्लॉज, योर परफेक्शंस, योर इम्परफेक्शंस एंड एवरीथिंग. जिनका दिमाग घटिया है ना, रेपिस्ट है, मर्डरर्स है, इंसेन लोग हैं, जो साइको है, सोशियोपैथ्स है, उनको आप डिसेबल्ड बुलाओ. करेक्ट. उनको ही बुलाओ बिकॉज एक्चुअली उनका माइंड गटर में. City Talks. Hey guys, what's up? This is me, Hamraj Borai, and yes, we are back with another episode of City Talks. एक ऐसा शो जहां पर हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिन पर बात करने के लिए लोग झिझकते हैं. और ऐसे ही टॉपिक को लेकर आज मैं स्टूडियो पर आया हूं और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो पर मौजूद है. मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा. शी इज अ क्वीन एंड हर व्हील चेयर इज अ थ्रोन. यस, शी इज डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट विराली मोदी. Hi. Welcome, Virali. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much for being here with us on this show. So, शो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं. So, मेरा नाम विराली मोदी है. Of course, you said that. I am a model. I am a motivational speaker. I am an influencer, and I'm a disability rights activist. I am very fun-loving, yaar. I mean, I love life. I'm very positive. I'm an optimistic person. And I'm very outgoing. मतलब और क्या ही बताना. Outgoing and outstanding. Definitely outstanding. I stand out from the crowd. That's great. तो मुझे ये बताना कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, क्या ये सब कुछ पहले से ही तय था कि मुझे इस फील्ड में जाना है या फिर? It was luck by chance. In a way, मतलब पहले से था कि हाँ I want to go into Tinsel Town because शाहरुख खान कुछ होता ही रहता है ना ऐसा. I mean, सपने दिखा दी उन्होंने तो. So I thought about हाँ मुझे भी एक्टिंग करनी है, मुझे भी मॉडलिंग करनी है. But then life happens, and after everything that happened, I became disabled, and after all of that, I finally decided कि what, disabled लोगों के लिए there is no one there representing them, especially in mainstream media. कोई नहीं है. So why not me? Why can't I do it? So I gave auditions, I did a lot of work, worked on myself. आखिर में that didn't pan out because nobody wants a disabled actress, right? किसी को नहीं चाहिए. And that is what I heard. That's what casting directors told me कि अगर आप चलते होते, if you are walking, then तो आपको cast कर ही लेते. But then आगे जाके I got my first big break with Being Human. And after that, it's been shoots, ads, TVCs, and now I'm here. Great, superb. And अगर ये फील्ड नहीं होता, तो would there have been a chance of you choosing some or the other stream? Probably I would be a doctor. क्या बात है. Yeah. So were you good in academics? I was very good in academics. अब मैथ के बारे में मत पूछो. मैथ के बारे में तो बिल्कुल भी मत पूछो. But yeah, science, biology, anatomy. I still love medicine like anything. I mean, I still watch medical shows. I still do research. I still read journals. बहुत interest है उसमें. How long have you been, doing this modeling and all these stuff? See, in 2014, I won Miss Wheelchair India. I was the second runner-up there. First runner-up, sorry. Second place. And then from there, I started modeling in 2017. In 2017 से बस वही चल रहा है. क्या बात है. Superb. And विराली, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा. Like you said कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो गया था due to which you became disabled. So would you like to share that incident with us? Definitely. Exactly हुआ क्या था? Definitely. सबसे पहली बात, किसी को नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है. I am एक अजूबा हूँ मैं. You can say that. नहीं, but at the age of 14, I was in the US. मतलब मैं वहाँ पे ही बड़ी हुई हूँ, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था. But at the age of 14, I went to India to visit my nanny and my extended family members. जब मैं वापस आई तभी वही मलेरिया के सिम्टम्स शुरू हो गए थे. बुखार, सर्दी, सर में दर्द हो रहा है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है. डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला एक नॉर्मल सा फीवर है, सीजनल है ये तो.
आप एक पैरासीटामोल ले लो, ठीक हो जाओगे। वो लिया, उससे बुखार तो दब गया, बट जैसे उसके इफेक्ट्स उतर गए, बुखार 102 103 फ़ारेनहाइट तक चला गया। वी वेंट टू द इमरजेंसी रूम, वहां पे सारे रिपोर्ट्स किए, यहाँ तक कि दे टुक अ नीडल, इंसर्टेड इट इनटू द स्पाइन, टुक आउट CSF टू टेस्ट फॉर न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स। वो भी नेगेटिव आया, मुझे वापस घर पे भेज दिया। एंड सडनली द नेक्स्ट डे जब मैं उठी, आई स्टार्टेड हैविंग हेलुसिनेशंस। I could not recognize my mom, I could not recognize anybody. 5 minutes later मैं एकदम ठीक हूँ, got up to walk and I am suddenly limping. मैं ढंग से नहीं चल पा रही हूँ, I'm not able to use the washroom. हम लोग वापस गए इमरजेंसी रूम में, they transferred me to a big hospital. वहां पे they did another spinal tap, same procedure, and I was declared dead for 7 minutes because मुझे seizure आया, blood pressure went high, मुझे vomit हुआ, half of the vomit went into my lungs, half came out, respiratory arrest and cardiac arrest. So I was laying on a testing table dead for 7 minutes. और finally shocks दिया heart को, they revitalized my heart, they couldn't get my breathing back, and then the next day I was put on a ventilator, transferred into the ICU, and the next day सब ठीक था. I was totally fine. I was conscious. They did another spinal tap and I went into a coma. Oh. So I was in a coma for 23 days, and during that 23 days मुझे 2 बार वापस से declare dead किया. And doctors have no idea whatsoever कि क्या हो गया मेरे साथ. सबसे बड़ी बात तो ये है, and ये एक miracle है, because 21st of September, just 8 days before my birthday, डॉक्टर्स ने ये मम्मी को बोला, मम्मी पापा को, कि विराली में कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, देयर इज नथिंग, सो वी वांट टू पुल द प्लग ऑन द वेंटिलेटर। मुझे मारना चाहते थे। मेरी मॉम, मेरे डैड तो वेरी सेंसिटिव किस्म के इंसान है वो, ही वाज वेरी सेंटिमेंटल, वेरी इमोशनल, क्राइंग ऑल द टाइम। और माय मॉम, शी वाज रॉक हार्ड, एक पत्थर थी वो। शी वाज लाइक, नहीं, मेरी बेटी इससे बाहर आएगी, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, मैं उसको बाहर निकाल के लाऊंगी मैं। एंड दैट डे डॉक्टर के पैरों में गिर गई वो, एंड शी वॉज क्राइंग एंड टेलिंग देम दैट विराली की 15th बर्थडे आ रही है 29th of September को, तो आई डोंट केयर व्हाट यू हैव टू डू, गेट द परमिशन, मुझे सेलिब्रेट करना है। द डॉक्टर्स वर जस्ट लाइक कि पागल तो नहीं हो गए, मतलब ठीक तो हो। एंड शी वाज लाइक, या, बिकॉज आई नो माय डॉटर इज गोना कम आउट ऑफ द कोमा, सो आई वांट टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। वो जब कोमा से बाहर आएगी तब वो मुझे पूछेगी व्हाट हैपेंड टू माय बर्थडे, आई वांट प्रूफ कि भाई मैंने सेलिब्रेट किया था। सो 29th of September डॉक्टर्स ने परमिशन तो दिया, लेकिन एक ही कंडीशन पे। कंडीशन ये था कि 29th of September मिडनाइट तक, 11:59 PM तक विराली में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो we will pull the plug and you have to sign the consent form. Okay. My mother signed the consent form that day, which is a metaphor for my death certificate in a way. 29th of September को they called all my family members. कुछ 80 लोग थे वहाँ पे, पूरा ICU का कमरा सजाया था, like a 5-year-old's birthday party. केक था मेरे सामने and everyone was surrounding the ICU bed. जैसे सबने हैप्पी बर्थडे गाया, पापा ने हाथ पकड़ा, मैंने केक काटा, I opened my eyes and I'm staring at the ceiling. और नहीं, the miracle is not here, the miracle comes again. Mom looked at the clock and the clock read 3:05 PM, which is actually my birth time. क्या बात है, goosebumps आ रहे हैं मेरे को। And actually में है। So I came out of the coma on my birthday at the exact time that I was born. सबको ये लगता है कि ये मेरा पुनर्जन्म है। क्या बात है। एक्चुअली मैंने भी ये सुना है कि you've been declared dead thrice. Yeah. And then you came back to life. Yes. Like the Undertaker. Definitely. Okay. तो ऐसा सुना है कि जब कोई अमेरिका से इंडिया आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ही सपोज टू टेक सम इंजेक्शन ड्यू टू विच ही उसे किसी तरह की कोई भी मलेरिया जैसी कोई बीमारी ना हो। सो वैसे इंजेक्शन तो नहीं, बट मेडिसिन होती है, जैसे क्विनाइन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, यू कैन टेक दैट टू प्रिवेंट मलेरिया। तो मैं जब आई थी यहाँ पे, आई टुक द फर्स्ट डोज इन द US, दैट इज एक्चुअली द प्रोटोकॉल। यू टेक द फर्स्ट डोज बिफोर ट्रैवलिंग, एंड देन व्हेन यू गो टू इंडिया,
देन यू टेक इट ऑन अ वीकली बेसिस. ओके. तो वो एक डोज शायद से मेरा मिस हो गया था when after coming to India, and मैं अकेली आई थी. Mom and dad were in the US. I was with my extended family. तो शायद से maybe they forgot, maybe I forgot exactly, थोड़े hazy है details, but एक डोज तो मिस हो गया था. तो शायद वही टाइम पे मुझे मलेरिया हो गया होगा या फिर इंक्यूबेशन पीरियड होगा, और जब वापस अमेरिका आई तो इट डेवलप्ड इनटू मलेरिया शायद से. बट कमाल की बात यह है कि इवन टेस्टिंग फॉर मलेरिया रिपोर्ट्स नेगेटिव थे. तो फिर पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है, और अभी तक किसी को नहीं पता क्या हुआ है. मुझे ये पूछना है कि जो लाइफ पहले थी और जो लाइफ उस दिन के बाद हुई, क्या चेंज देखा आपने? ऑनेस्टली बहुत चेंज दिखा है. हाउ पीपल बिहेव विथ यू, हाउ पीपल रिएक्ट टू यू, लोगों की मेंटालिटी क्या है, उनके परसेप्शंस क्या है. स्ट्रगल बहुत देखा है मैंने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देखा है, अप्स एंड डाउन्स बहुत देखा है, और उसकी वैल्यू करना सीखी हूं मैं. और सबसे बड़ी बात तो ये, लोग कहते रहते हैं यू शुड लव योर सेल्फ, यू शुड लव योर सेल्फ, राइट? लेकिन किसी को पता नहीं कि वो एक्चुअली कैसे करते हैं. हाउ डू यू ट्रूली एक्सेप्ट योर सेल्फ, योर फ्लॉज, योर परफेक्शंस, योर इम्परफेक्शंस एंड एवरीथिंग. ठोकर खाने के बाद वो मैंने सीखा है कि नो मैटर व्हाट, 3 बार मर के तो आई हूं ना मैं, तो कुछ तो रीजन होगा कि मैं यहाँ पे हूँ. So despite the disability, despite the flaws, despite everything, I should be grateful for the life that I have. मुझे दोबारा मौका मिला है, हर किसी को नहीं मिलता. Correct. मुझे मिला है. So I'm very proud and I'm very happy with the life that I have now. I'm pretty sure अगर पहले की लाइफ होती तो जो सब कुछ मैंने हासिल किया है अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बोलो या फिर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में बोलो, वो मैं शायद हासिल नहीं कर पाती. इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझ में, इतनी समझ नहीं आती लोगों के बारे में, लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, शायद नहीं समझ आती. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई लव द लाइफ दैट आई हैव. सुपर्ब. तो जो दोस्त, जो रिलेटिव्स थे, उनका बर्ताव उसके बाद? उनका तो यही था ना कि मुझे बर्डन बोला गया है काफी बार कि बोझ हूं मैं, बोझ हूं. बिकॉज क्या कोमा के आने के बाद मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे थे. पैर तो चलो अभी तक भी नहीं चलते, बट हाथ भी नहीं चल रहे थे. मैं बैठ भी नहीं पाती थी, मैं गिर जाती थी. तो तभी दोस्त है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, सब ने मुझे यही बोला कि तू एक बोझ है, दुनिया का बोझ है. तो एक वेजिटेटिव स्टेट में लेटी पड़ी है, बेड रिडन है, क्या ही करेंगे हम तुम्हारे साथ. तभी मुझे एक एहसास हुआ कि क्या आप मेरे दोस्त या आप मेरे फैमिली मेंबर्स इसीलिए हो क्योंकि मेरे पैर चलते थे, अभी नहीं चलते तो मेरे दोस्त और फैमिली मेंबर्स नहीं हो. मतलब आपकी नजर में मेरी कीमत उतनी ही है. आई एम सॉरी बॉस, लेकिन मेरे नजरों में मेरी कीमत बहुत है. ऐसे दोस्त, ऐसे परिवार नहीं चाहिए मुझे. मैं अकेली हूँ, सुकून है. तो लाइफ में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था, लाइक जब तुमने सोचा कि नो, आई शुड डू समथिंग फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल? 2008 मैं एक्चुअली अमेरिका से इंडिया आई फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी. तो जब भी मुंबई आई मैं, तो मुंबई से दिल्ली जाना था ट्रेन से. मम्मी थी मेरे साथ, पापा यूएस में. तो जैसे वी गॉट into the cab and out of the cab at the station, सब टैक्सी को मतलब घेर लिया, सबने घूरने लगे मुझे. तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक इंसान नहीं हूं मैं, इंसान नहीं हूं. मतलब ये क्या देखने की चीज है, व्हीलचेयर है भाई, मतलब क्या है, बड़ी बात नहीं है ये. हम प्लेटफॉर्म पे गए और जो कंपार्टमेंट है उसके सामने में गए, वहां पे देखा सीढ़ियां है अंदर जाने के लिए. मैंने सोचा चलो एक लिफ्ट होगा, कुछ तो होगा. कुछ नहीं था. मम्मी ने 2 पॉटर बुलाए, पॉटर आए और बहुत गंदी नजर से मुझे देखने लगे ऊपर से नीचे तक. मतलब मुझे घिन आने लगी. एक बंदा आया, उन्होंने यहाँ अंडरनीथ माई आर्म्स मुझे ऐसे उठाया, दूसरे ने अंडरनीथ माई नीज वहां से उठाया उन्होंने. जैसे मुझे कंपार्टमेंट में अंदर लेकर गए, जिन्होंने अपर बॉडी से उठाया था, he wrapped his arms around my chest and he started molesting me.
सबके सामने सब थे वहां पे, मम्मी बाहर थी, पब्लिक को रोक के रखा था मम्मी ने, लेकिन जो भी पब्लिक अंदर है कंपार्टमेंट में सब देख रहे, सब पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और तभी मुझे ये एहसास हुआ कि क्या एक डिसेबल्ड होना एक गुनाह है, एक गलती है। ये मैंने तो नहीं चाहा ना, ये मैंने तो नहीं बोला कि ऊपर वाला मुझे ऐसा बना कि मुझे ऐसा कुछ कर दे मेरे साथ, मैंने तो नहीं किया ना। तो फिर वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, क्यों घूर रहे हो मेरे सामने? आवाज नहीं दी है भगवान ने, उठाओ ना आवाज, यू कांट से एनीथिंग। उस वक्त तुमने भी कुछ नहीं बोला उसको? मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे ये डर था अगर मैं कुछ बोलती और उन्होंने मुझे गिरा दिया तो जो पब्लिक खड़ी है वो तो मेरी मदद तो नहीं करते, अगर एक आवाज तक नहीं उठा सकते तो क्या ही मदद कर लेंगे। और मम्मी को भी नहीं बोला, क्योंकि मम्मी को ऐसा फील नहीं कराना था कि ये सब मम्मी के वजह से हो रहा है, ये मैंने अपनी बेटी को ऐसी पोजीशन में डाला जब भी मम्मी की गलती ही नहीं है। और ये 3 बार हुआ है, 2008, 11, 13, चुप रही हूं मैं। और तब जाके सोचा कि नहीं कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन 2017 में बोला, 2017 में आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। तो फिर मैं हमारे लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स से बस यही कहूँगा कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो इट्स योर राइट टू रेज योर वॉइस, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं ये होती रहेंगी और इस पर रोक लगाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों पर अगर रोक लगाना है, कुछ गलत होता दिख रहा है, सो यू नीड टू रेज योर वॉइस। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपने क्या किया? सो 2016 में शायद से आपको याद होगा डिसेबिलिटी राइट्स बिल पास हुआ था, एंड ऑफ 2016। 2017 में एक ट्रेन लॉन्च हुई थी, द तेजस एक्सप्रेस, जिसमें ये बोला था कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है और जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनके लिए सुविधा दी गई है। बट जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है, मतलब जिनको चलने में तकलीफ है या ढंग से नहीं चल पाते या केन से लेके चलते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो यार ऑनेस्टली बोलूं, मुझे गुस्सा आया, ठीक है। आई गॉट एंग्री, आई बिकेम द एंग्री यंग वुमेन, आई बिकेम एंग्री बिकॉज मैंने ये सोचा कि यार एक डिसेबिलिटी जो टर्म है ना, एक अम्ब्रेला टर्म है, इट इनकैप्सुलेट्स मेनी डिसेबिलिटीज। उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट आ जाती है, मेंटल डिसेबिलिटीज आ जाती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज आ जाती है, विजुअल इम्पेयरमेंट आ जाता है, करेक्ट। सो इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, सो यू कैन नॉट जस्ट चूज कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी के लिए सुविधा देनी है, इट शुड बी फॉर ऑल डिसेबिलिटीज, करेक्ट। तो तब जाके मैंने, देखो पहली बात तो ये, मैंने ऑनलाइन मुझे डालना था, ओपन लेटर मुझे लिखना था, लेकिन मैं डर गई थी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये बोला कि आई वॉज मोलेस्टेड, ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो ये हमारे दिमाग में बचपन से बोलते हैं ना कि 3 लोग क्या सोचेंगे, 3 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो यही थॉट था मेरे माइंड में। मेरी मम्मी को पूछा मैंने, तो मम्मी ने बोला दुनिया तेरा पेट भर रही है, करेक्ट नहीं ना, मैं और पापा है ना, आगे बढ़, सिंपल, आगे बढ़, कोई कुछ बोलेगा तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। मैंने, मम्मी ने हिम्मत दी, तब मैंने जाके ओपन लेटर लिखा और वो वायरल हो गया, बहुत फैला, मतलब पब्लिकेशंस, रेडियो फॉर एग्जांपल, न्यूज, एवरीथिंग, मीडिया, सबने कवर किया इसको। फाइनली जाके मैंने, मतलब यार वो टाइम पे ट्विटर पे हमारी गवर्नमेंट इतनी रिस्पॉन्सिव थी, मैंने ट्विटर पे भी डाला, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था। सो देन आई स्टार्टेड अ पिटिशन ऑन change.org, और वो पिटिशन चालू करने के बाद आई टाइड अप विद अ रेलवे ऑफिशियल फ्रॉम केरला, और उनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, हमने सिर्फ व्हाट्सएप पे बातें की है। आई मीन लुक एट द पावर ऑफ सोशल मीडिया, राइट, ऑफ कम्युनिकेशन। उनसे सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करी और हमने ये सोचा कि हाउ कैन वी मेक अ रेलवे स्टेशन मोर एक्सेसिबल विदाउट एनी रेनोवेशन, क्योंकि अगर रेनोवेशन का परमिशन लेने जाएंगे तो सालों लग जाएगा, करेक्ट। सो ऐसा कुछ करते हैं जो फटाफट काम हो जाए और भले के लिए हो जाए, सबकी भलाई के लिए हो जाए। सो आई डिसाइडेड, मैंने ये आइडिया डाला कि वाई डोंट वी इनकॉर्पोरेट पोर्टेबल रैम्प्स जो व्हील्स के साथ होती है और ब्रेक लगाया जाता है उसमें,
और जो एयरप्लेन में छोटी सी व्हीलचेयर मिलती है विच Correct. फिट्स इनटू द आइल्स, तो व्हाई कांट वी डू दैट? सो दे सेड व्हाई नॉट, ट्राई करके देखते. ट्राई किया एंड इट वर्कड. It worked like a miracle. और साथ साथ में we sensitized the railway staff, the porters. We also started a helpline number for people with locomotor disabilities कि अगर उनको help चाहिए तो ये नंबर पे फोन कर सकते हैं. With that, we ended up making 9 stations totally wheelchair accessible all over India. क्या बात है, super. Yeah. So, I mean, that was just the start of it. It was just amazing to see कि हाँ यार, मतलब there are people willing to bring about change. True. Right? And I always say this, be the change that you want to see. Be the change that you want to see. अगर मैंने आवाज नहीं उठाई होती तो पता नहीं ये होता या नहीं होता. पता नहीं. करेक्ट. इस पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल हम तो रोज ही कम्यूट करते हैं रेलवे से, तो जब मैं देखता हूँ तो आजकल हर जगह पे एस्केलेटर्स आ गए हैं, बट हर कोई एस्केलेटर्स से नहीं जा सकता. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें हु इज वॉकिंग विद अ स्टिक, तो एस्केलेटर पे जब जाएगा तो खुद को संभालेगा, स्टिक को संभालेगा, या कैसे जाएगा? तो यहाँ पे कमी होती है सारे लिफ्ट्स की. जी. तो आई थिंक लिफ्ट्स अगर हो जाएंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर दीज पीपल. इट वुड डेफिनेटली बी बेटर. बट मॉल में गए हो ना, मॉल में गए हो, लिफ्ट के सामने कितनी पब्लिक होती है, एस्केलेटर के सामने कितनी पब्लिक होती है, देखा है ना आपने? यही प्रॉब्लम है. देखो, कोई गलत नहीं है कि आप लिफ्ट यूज करो, इवन इफ यू डोंट हैव अ डिसेबिलिटी, इवन इफ यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन, आप यूज करो, इट इज योर राइट ऑफ कोर्स. बट आप जब देखते हो कि कोई सीनियर सिटीजन है या फिर जिन किसी को डिसेबिलिटी है, आप उनको पहला प्रेफरेंस दो ना. करेक्ट. पहला प्रेफरेंस उनको दो. हमारी सोसाइटी ये नहीं समझती. अनफॉर्चुनेटली दिस इज द बिटर ट्रूथ. अगर ये समझ जाएगी ना तो सबके लिए दिक्कत नहीं होगी, आसानी हो जाएगी सबके लिए. नहीं, सबसे ह्यूमरस सीन ये होता है कि एस्केलेटर के पीछे लोगों को वेट करना मंजूर है, वहीं उसके ऑपोजिट में जो स्टेयरकेस है वो पूरा खाली होता है जी. और कोई स्टेयरकेस से नहीं जाता. मेरी जैसे बंदे जो जाते हैं भाग भाग के, जिनको वेट करना नहीं होता यहाँ पे, और लोग अपने फोन पे लगे रहेंगे और एस्केलेटर पे खड़े हैं. जी. तो ये सारी प्रॉब्लम है जिनका की सोल्यूशन हमें निकालना है. And there is also one more thing, talking about your open letter on change.org, you were even being slut shamed for that. Oh yeah, definitely. काफी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भेजा है कि अरे तेरे साथ एक बार तो हो गया ना, why are you reliving the situation? आवाज उठाने की क्या जरूरत है? अगर आवाज नहीं उठाई होती ना तो ये चेंज नहीं आता. करेक्ट. सिंपल सी बात है. तो स्लट शेम मी ऑल यू वांट, मैंने जो किया मैंने सही किया है. करेक्ट. एंड वन मोर थिंग, ये सब होने के बाद फिर क्या हुआ? ये होने के बाद आई एक्चुअली वॉन द विमेन्स अचीवमेंट अवार्ड बाय दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन. यार अभी अगर अवार्ड शेफ हाँ, मैं उसी पे आ रहा था. अपने अचीवमेंट्स के बारे में काफी कुछ सुना है मैंने. अवार्ड शेफ देखोगे ना तो जगह नहीं है अवार्ड रखने की, मतलब एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग, आई एम एक्चुअली बीइंग रियलिस्टिक अबाउट इट. नहीं है जगह. बट आई वाज आल्सो नेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पिरेशनल वुमेन बाय बीबीसी 100 वुमेन इन 2017. भारत प्रेरणा अवार्ड जीती हूँ. आई become a motivational speaker now. I've traveled the world giving talks, international भी travel करती हूँ. And finally मेरा जो सपना था कि मुझे modeling करना है, that came true thanks to being human. It's been great, yeah. I mean, I've also walked the ramp as the showstopper for Bombay Times Fashion Week for FBB. Worked with the renowned brands like Live On, WeWork, Future Generali. I did my TVC with them. Taylor and Circus. I've become the first wheelchair using model in India. क्या बात. So it's been a pretty cool journey, yeah. तो मुझे ये अब जानना है कि इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद जो लोग इस तरीके से बर्ताव कर रहे थे उनका क्या रिएक्शन था फिर? जो बोझ बोल रहे थे, बर्डन बोल रहे थे. कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती. कौन है? आई डोंट नो, आई एम सॉरी. नहीं, अप्रोच करने की तो कोशिश की होगी उन लोगों ने कि हाँ यार हिराली की होगी, लेकिन सॉरी आपका गलत नंबर लगा है. ओह माय गॉड. नहीं देखो, ऑनेस्टली if you are not there with me during my struggle, correct, why should you be here with me during my success? Absolutely. It is simple. For me it is very simple. Treat me right, I will treat you right. You treat me wrong, I will treat you wrong.
बस। और इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद व्हाट वुड बी योर डेफिनेशन फॉर डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी इज अ परसेप्शन, इट इज अ माइंडसेट। डिसेबिलिटी इज नॉट कि हाँ मैं चल नहीं सकती या चल नहीं पाता तो मैं बेचारा या बेचारी हो गई। नो, दैट बेचारा बेचारी इज ऑल इन योर माइंड। इट इज नॉट अबाउट योर डिसेबिलिटी। अपना सोचने का तरीका बदलो, चेंज योर परसेप्शन। तब जाके ना, व्हेन पीपल सी योर कॉन्फिडेंस, पीपल वोंट लुक एट द व्हीलचेयर, पीपल विल सी योर ट्रू पर्सनैलिटी। ये मैंने देखा है। बिकॉज लाइक यू सेड, शुरुआत में जो आपने बोला, आई एम द क्वीन, द व्हीलचेयर इज माई थ्रोन। सॉरी, रॉयल्टी को ही थ्रोन मिलता है, ठीक है? सो दैट इज मी एंड आई ट्रूली बिलीव दैट। मेरे माइंड में ये डिसेबिलिटी ये नहीं आता, एंड आई यूज द टर्म डिसेबिलिटी बिकॉज इट एम्पावर्स मी। लोगों को ये लगता है कि नो, यू आर नॉट डिसेबल, यू आर डिफरेंटली एबल। आई एम सॉरी, नो डिसेबिलिटी, नो ओपिनियन। I am sorry about that, but that is a fact. Disability, it empowers me because everyone thinks, सबको ये लगता है कि व्हीलचेयर पे बंदी क्या ही उखाड़ लेगी। भाई साहब, उखाड़ के दिखा दिया। क्या बात है। And what would be your term? I mean to say the people who should be called disabled. Like कौन है वो लोग जिसे हम कह सकते हैं हाँ यार disabled है? जिनका दिमाग घटिया है ना, रेपिस्ट है, मर्डरर्स है, इंसेन लोग हैं, जो साइको है, सोशियोपैथ्स है, उनको आप डिसेबल बुलाओ। करेक्ट। उनको ही बुलाओ बिकॉज एक्चुअली उनका माइंड कटर में। And do you think our government is actually doing something for a disabled community? See, this is a very touchy subject because yes, I've seen ramps, not everywhere, but yeah, I have seen ramps. But then आप देखो, if you go onto the footpath, वहां पे रैंप है चढ़ने के लिए? नहीं है, आपको रास्ते से ही जाना पड़ता है। दैट इज वेरी अनसेफ। और अगर रैंप है अवेलेबल तो बाइक चढ़ जाती है। सो द थिंग इज कि हाँ, गवर्नमेंट कर भी रही है और नहीं भी कर रही है बिकॉज लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। सो दैट इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टू बी डन। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो आप कहाँ, टेल मी वन थिंग, A to B आप जब घर से निकलते हो कितने बैरियर्स आते हैं? थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ डिसेबल्ड अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटीज पर्सपेक्टिव, अ व्हीलचेयर यूजर्स पर्सपेक्टिव। कितने बैरियर्स आते हैं, है ना? जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक एक डिसेबल्ड इंसान अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली कैसे जिएगा? दैट इज द पॉइंट। सो विराली, मुझे एक और चीज पूछना था। ड्यूरिंग योर टफ टाइम्स और आज, वो कौन ऐसा एक व्यक्ति है या कोई दोस्त जो तब भी था और आज भी है? दोस्त तो नहीं बोल सकती। दोस्त तो तभी के टाइम पे और अभी के टाइम पे काफी डिफरेंट है। सारे शफल हो गए। सारे शफल हो गए। बट एक ही दोस्त है जो मेरे साथ हमेशा था, और वो मैं खुद। क्या बात है। और वो मैं खुद। लाइक आई सेड, यू नीड टू लव योरसेल्फ, राइट? लोग बोलते हैं कि यू नो, यस आई मे बी अलोन बट आई एम नॉट लोनली, आई हैव माई सेल्फ फॉर दैट। बट दैट वन पर्सन जो तभी भी था और अभी भी है, खैर इस दुनिया में नहीं है, बट दैट इज माई मदर। माई मदर हैज ऑलवेज बिन माई रॉक टू मी, ऑलवेज बिन माई सपोर्ट। मेरी रीढ़ की हड्डी है मेरी माँ। तो वो तभी भी थी, अभी भी है, फिलहाल दुनिया में नहीं है बट मेरे दिल में। वो हमेशा साथ रहेगी यार, ऐसा हमेशा साथ में है वो। माँ तो माँ है। ये इनकी ही घड़ी पहनी है, हमेशा मेरे साथ ही आती है मम्मी। माँ की घड़ी, वो तो वही सीन हो गया 3 Idiots वाला। अरे मेरी माँ की घड़ी है। सो योर मैसेज फॉर द पीपल हु थिंक कि हम डिसेबल्ड है तो हम कुछ नहीं कर सकते? भाई साहब, आप सब कुछ कर सकते हो, जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव। डिसेबिलिटी इज ऑल इन द माइंड, इट इज ऑल अ परसेप्शन। चेंज योर परसेप्शन, लुक एट द वर्ल्ड विद अ डिफरेंट व्यू। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। So thank you so much, Virali, for being here on the show and sharing your experiences and encouraging all of us. Thank you so much. And this is me, Hamraj Bora, and you were watching City Talks, only on Radio City. Aussie Swapper, Aussie Swapper. Aussie Swapper, Aussie Swapper.